Hello प्यारे बच्चों, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about satellite that is our moon and we will be talking about artificial satellites, right? जो हम लोगों ने man-made बनाई है, right? So basically we will be talking about satellites today and also we are going to see the phases of the moon. कैसे phases बनते हैं moon के, हमें हमेशा change होते हुए shape and sizes क्यों दिखते हैं moon के, we'll be look up to that, we'll be reason that, right? So let's start, right? Now if you want to know आपकी DPPs and study material over there, so you can join our Telegram channel and the code is TTB08. तो अगर आप TTB08 लिखेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे 8th क्लास का चैनल अपेयर हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर एंड इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, राइट? उससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे वीडियोस के, तो दैट वुड बी कूल. नाउ सी, दिस इज़ द टीम विच इज़ वेरी मच डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू ऑल एंड हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? एंड वी आर हेल्पिंग यू सो दैट यू कैन अचीव ऑल योर टारगेट्स, राइट? हमारी पूरी टीम हेल्प कर रही है, राइट? एंड बहुत ही ज़्यादा हम लोग मेहनत करें इस चीज़ को लेके. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टडी फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स बिकॉज अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट? सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टडी more and then what you need to do next, you need to share these video lectures to every one of your friends ताकि सभी आपके फ्रेंड्स को ये नॉलेज मिल सके और सभी अपने गोल्स को क्रैक कर सके, ठीक है? एंड टू एक्सेस ऑल दी नेक्स्ट पैकेजेस जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, यू नीड टू गो ऑन अवर वेबसाइट, that is the www.talkingtextbooks.in. when you go on that website, ठीक है, तो आपको दो तरीके की पैकेजेस मिलेंगे, द फुल वन एंड द टेस्ट सीरीज. फुल पैकेज है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हर बार ज़रूरत चाहिए होंगी. सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, द लाइव क्लासेस, द होमवर्क सबमिशन फीचर, बाय वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ऑल द नेसेसरी थिंग्स. इवन अगर आप सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहते, यू वांट टू गेट द टेस्ट सीरीज, देन यू कैन जॉइन इट. You will be getting periodic test papers, recorded live classes, bi-weekly quizzes. So you can join both of the things. ठीक है, now it's on you. Which of the things you are needing, right? That is the main thing. Now if you want to buy them, you can use my code to get a 30% discount, and the code is CY Live. So you can get the CY Live, you can write the code and you are going to get the 30% discount. And even if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111, right? It would be cool. It would be good also, right? So we will be answering all your queries over there. So make sure you can call us on the number. Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, all right? That is the most important thing, right? आपको रिविजन करना है एंड अगर आप रिविजन करते हैं उसकी वजह से ही आपके एग्ज़ाम में आपका जो सेट किया है आपने खुद के लिए गोल, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने के चांसेस हैं. Reason is by revision you are going to stick all the knowledge in your head. That is the main important thing, ठीक है? अगर नॉलेज हमारे दिमाग में होगी तभी तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, राइट? चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैटेलाइट. अब हम अपने मून की भी बात करेंगे और थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, ठीक है, जो कि हम लोगों ने बनाई है बेसिकली. So we'll be talking about satellite of Earth, Moon, natural satellite, artificial satellite, phases of Moon, right? Order would be different, but we will be talking about that. So let's talk about what are these satellites over there. ठीक है, the bodies which are revolving around the you can say planet, any planet, heavenly body. So the bodies which are revolving around another heavenly bodies are known as the satellite. ठीक है. सो जो मून है वो एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, मतलब इट इज़ अ बिग सेलेशियल बॉडी एंड वो जो बॉडी है वो क्या कर रहे हैं, अर्थ जो कि खुद एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी सेलेशियल बॉडी है, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है. एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, राइट? And we are also having some artificial satellites जो कि we humans made that, right? हमारे communication systems के लिए and for many other reasons हम लोगों ने जो satellites create की हैं, ठीक है, those are the man-made or the artificial, right? जो naturally occurring हैं, those are known as the moons
और दी नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। सो ये जो सैटेलाइट्स है वो नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट्स ओवर देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मून, राइट। आवर मून, ये हमारा नेक्स्ट नेबर है, ठीक है। जब हम आउटर स्पेस से जाते हैं तो पहली बार हम किससे मिलते हैं? मून से मिलते हैं, राइट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट यू कैन से नेबर, राइट। जब हम यू कैन से बाहर जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो पहली चीज़ जो हमारे सामने आनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? मून, राइट। वो है भी मून, राइट। हालांकि वो हो सकता है क्योंकि वो हमेशा रोटेट करते रहता है तो हो सकता है वो आपको नहीं मिले, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट दी मून ओवर देयर। दिस इज दी नेक्स्ट नेबर इन स्पेस। सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है? ऐसी सेलेशियल बॉडी होती है जो दूसरी बड़ी सी बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, जस्ट लाइक मून डज इट। हमारे 8 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स के पास तो एक भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड द वीनस, राइट। और जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ओवर देयर। सैटर्न के पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। यूरेनस इज हैविंग लाइक 27 सैटेलाइट्स ओवर देयर। नेपच्यून इज हैविंग 14 सैटेलाइट्स ओवर देयर एंड मार्स इज हैविंग 2 सैटेलाइट्स ओवर देयर। सो बेसिकली देयर आर वेरियस नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स जो कि अलग अलग प्लैनेट्स के बेसिस पर अलग अलग अमाउंट में हैं, ठीक है। हमारी इवन अर्थ के पास भी है 1 मून, राइट। वी आर ऑल्सो हैविंग अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, जिसे हम प्यार से मून बुलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मून हैज़ नो एयर, है ना। मून जो है उसके पास जो है देयर इज नो एयर, ठीक है। ना तो उसके पास वाटर है ना उसके पास एयर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। अर्थ का जितना डायमीटर उसका 1/4, ठीक है, मतलब उसका 4th पार्ट उतना ही डायमीटर है। सो वी कैन से इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द अर्थ। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका जो मास है वो 1/81 ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के मास को हम 81 से डिवाइड कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी द मास ऑफ द अर्थ विच इज वेरी मच मास ऑफ द मून, राइट। तो दैट इज वेरी मच लेस अमाउंट, ठीक है। इट हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन, खुद की लाइट नहीं होती है इसके पास। इट ऑब्जर्व्ड सिल्वर ग्लो, इट इज ओनली ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय इट्स सरफेस। हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है रात में? वो इसलिए बिकॉज ये सन की जो लाइट इसके ऊपर फॉल होती है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है हम तक। तो हमें जो लाइट मिल रही होती है एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड सनलाइट ही होती है, ठीक है। एंड ये जो मून है, ठीक है, ये मून की खुद की लाइट नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है और इसी वजह से ये हमें चमकता हुआ नजर भी आता है, ठीक है। सो आप फटाफट से इन बातों को नोट करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कुछ और बातें हम जान लेते हैं मून की, ठीक है। देखिए, मून काफी ज्यादा छोटा होता है स्टार से, ठीक है। मून काफी ज्यादा छोटा होता है स्टार से, लेकिन ये हमको बड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे काफी पास है। स्टार्स बहुत 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 दूर हैं और मून से बहुत 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 बड़े भी हैं, ठीक है। हालांकि वो दूर है इसलिए हमें छोटे छोटे नजर आते हैं, जो पास की चीजें होती हैं वो बड़ी बड़ी नजर आती हैं, तो इसी वजह से हमें मून भी बड़ा नजर आता है, ठीक है। अगला देखिए फैक्ट, दिस नियर नेबर इज हाउएवर स्टिल अबाउट द 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज बिटवीन द अर्थ एंड द मून। स्टिल हमारे पास है बट इतना भी पास नहीं है। देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है, यू कैन सी टू दैट, राइट। यू कैन गेट दैट 3,84,400 किलोमीटर। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है बेसिकली, राइट। सो स्टिल हमारे नियर तो है। काश जो दूसरे स्टार्स होते हैं दे आर लाइक लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो हार्ड और लूज डर्ट से कवर्ड है, ठीक है, मतलब हार्ड और लूज जो डस्ट वहाँ पर है, डर्ट वहाँ पर है, वो उससे पूरी तरीके से कवर्ड है, ठीक है। कहीं पर सरफेस हार्ड है, कहीं पर सरफेस स्मूथ है और वहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ डर्ट नजर आएगी, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो माउंटेन्स एंड वैलीज ओवर देयर। तो आपको कई जो मतलब इट्स नॉट इवन, यू कैन से इट्स नॉट इवन,
राइट, इट्स नॉट प्लेन इवन। आपको वहाँ जाने पर यू आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट ऑफ वैलीज, लिटिल बिट ऑफ माउंटेन्स, है ना, और यू कैन इवन गेट अप टू वेरी मच ऑफ हिल्स ओवर देयर, ठीक है। देखिए, एंड इट हैज मैनी अपलैंड्स, माउंटेन्स एंड वैलीज दैट आर फिल्ड विद ड्राई रॉक मटीरियल, और वो हिल्स एंड वैलीज किससे फिल्ड है? ड्राई रॉक मटीरियल से फिल्ड है, ठीक है। ये उसका नेचर है ना। जो मून है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो क्या है कि वो अर्थ के चारों तरफ 27 आवर्स एंड 27 डेज एंड 7 आवर्स, बेसिकली 27 डेज एंड 7 आवर्स में वो अर्थ का 1 रिवॉल्यूशन कर लेता है, ठीक है। सो देखिए, 1 रिवॉल्यूशन कर लेता है, ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करता है, खुद के एक अपने रोटेशन को करता है, ठीक है। सो बेसिकली इट टेक्स अबाउट दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि हमारे वो पूरे अर्थ के चारों तरफ 1 राउंड को कंप्लीट करने में लेता है। We on the earth therefore always see only one side of the moon, its other or black side is not seen from the earth. So basically वो क्या करता है, देखो वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है, बट सिर्फ एक बार रोटेट करता है, ठीक है। कैसे रोटेट करता है वो देखिए, अगर वो इधर है, ठीक है, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून, वो ऐसे रोटेट करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज हमारे अर्थ की तरफ रहता है। इसका जो दूसरा फेस है वो हम देख ही नहीं पाते, अर्थ से वो आपको नज़र नहीं आ सकता, वो रोटेट ही इसी मैनर में करता है कि हमें वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस कि हमेशा एवरी सिंगल टाइम दिस फेस इज टूवर्ड्स दी अर्थ, ठीक है, एवरी सिंगल टाइम ये चारों तरफ घूम रहा है, फिर भी सिर्फ यही फेज ही अर्थ की तरफ है, इसके पीछे वाला फेज अर्थ की तरफ नहीं होता कभी भी। सो इफ यू वांट टू गो ओवर देयर, इफ यू वांट टू चेक आउट, देन यू हैव टू गो ऑन टू द मून एंड देन यू हैव टू चेक आउट द सरफेस एंड ऑल अबाउट द अदर साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि अदर साइड ऑफ द मून बेसिकली, जो कि हमें कभी अर्थ से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मून। तो जनरली हमें इस तरीके के फेजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी तो हमें बिल्कुल फुल मून दिखाई देता है, मीन्स अ कंप्लीट होल सर्कल हमें दिखाई देता है ऑफ द मून, राइट। फिर समटाइम्स वी कैन गेट ओनली द पार्शियल, उनका सिर्फ पार्शियल व्यू हमें नजर आता है, लाइक दिस। कभी कभी हमें एग्जैक्ट हाफ नजर आता है, और इवन कभी कभी हमें नजर ही नहीं आता, जिस दिन होती है अमावस्या, राइट, उस दिन कोई भी मून हमें नहीं दिखाई देता। लेट्स सी हाउ दीज फेजेस आर फॉर्म्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैम, ठीक है। चलिए उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि भाई मून की खुद की लाइट तो नहीं होती, वो शाइन इसलिए करता है क्योंकि सन की लाइट उसके ऊपर फॉल होती है और वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके आगे की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर जो हाफ ऑफ द मून सरफेस है वो डायरेक्ट सनलाइट में होता है एंड अदर हाफ जो है वो कंप्लीट शैडो में होता है। तभी हमें क्या दिखाई देता है, नो मून, बिकॉज जो साइड हमारी तरफ फेस है अगर वहां पे टोटल डार्कनेस है तो हमें तो वो नजर ही नहीं आएगा। अगर जो साइड हमारे तरफ है उसके पास कंप्लीट सन की एनर्जी है तो वो हमें फुल नजर आएगा, राइट। देखिए, but since the moon revolves around the earth and the earth along with the moon revolves around the sun, we cannot see entire sunlit surface of moon from the earth all the time. सारे टाइम, एवरी सिंगल टाइम में हम लोगों को ये मून कंप्लीट नहीं नजर आता। रीजन इज क्योंकि ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज वाई। उसके साथ साथ मतलब अर्थ अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो इस अर्थ के साथ साथ मून भी तो जा रहा है ना, मून भी चारों तरफ जा रहा है, अर्थ के चारों तरफ जा रहा है, साथ ही साथ वो पूरे टाइम अर्थ के साथ ही है, राइट। तो इसके चक्कर में ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर लेता है बाय जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना, अर्थ के ही चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन अर्थ के साथ तो रहता है ना, अर्थ को छोड़ के तो नहीं जाता। दैट इज वाई आपको हमेशा अलग अलग फेसेस नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि सन की लाइट कभी वो पूरे आधे सरफेस पे पड़ती है, कभी थोड़े से सरफेस पे पड़ती है, कभी कभी पड़ती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं पड़ती, बट वो फेस हमें नजर नहीं आता, ठीक है। दैट इज द रीजन कि हमें नो मून दिखाई देता है। नो मून मतलब एक भी मून नहीं। वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द सनलिट सरफेस ऑफ द मून विच इज टूवर्ड्स अस। हम सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं जो हमारी तरफ है। जैसे आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें
इस तरीके से टिल्ट हो चुका है, ये जो मून है ये इस तरीके से टिल्ट हो चुका है कि वहाँ पर सन है, तो सन की रेज इस मून के ऊपर अगर आती हैं, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा वुड बी द लाइटन अप, है ना, और इधर का पीछे का हिस्सा जो डार्क है, अंधेरे में है, वहाँ पे तो लाइट नहीं आ रही है, हमें तो चमकता हुआ नजर आता है। दैट इज द थिंग कि सिर्फ इतने से ही पार्ट से लाइट हम तक आ रही है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ओनली दिस मच ऑफ द मून ओवर देयर, ठीक है। सो बेसिकली हाफ ऑफ द मून पे लाइट फॉल होती है, ठीक है, हाफ ऑफ द मून पे नहीं होती, ठीक है। फेसेस हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ ही हिस्सा अर्थ की तरफ है, जो हिस्सा अर्थ से अवे है वो तो हमें नजर आता ही नहीं, ठीक है। अब जो हिस्सा अर्थ की तरफ भी है और उस हिस्से पे सनलाइट भी फॉल हो रही है, वही पार्ट हमें नजर आता है, राइट। सो देयर हैज टू बी बोथ द कंडीशंस ट्रू फॉर दिस, राइट। नाउ let's talk about, does we see different amount or portions of the sunlit surface of the moon from the earth depending upon the relative positions of the sun, moon and the earth। तो इन तीनों की relative positions की वजह से ही we are going to see this much of the moon's faces, ठीक है। अलग अलग moon faces सिर्फ इसी वजह से हमें मिल पाते हैं, ठीक है। Thus sometimes इसी वजह से हमें कोई भी नहीं दिखाई देता जिस दिन अमावस्या होता, बिल्कुल भी मून नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिस हिस्से को, मून का जो पार्ट अर्थ की तरफ है, वहां पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं गिर रही है, तो हमें वो नजर ही नहीं आता, ठीक है। दैट इज वाई मून होता है, आसमान में होता है, ठीक है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, बिकॉज वहां पर उस फेस पर सन की लाइट नहीं फॉल हो रही होती है, ठीक है। तो इसे हम न्यू मून बोल देते हैं। अगर हमें बिल्कुल मून नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसे न्यू मून बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें लेस देन हाफ मून दिखाई देता है, यानी कि ये फेज और ये फेज, ठीक है, ये लेस देन हाफ मून दिखाई दे रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रेसेंट मून बोलते हैं। कौन सा मून बोलते हैं? क्रेसेंट मून बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, समटाइम्स वी सी हाफ ऑफ द मून, कभी हमें एग्जैक्ट आधा दिखाई देता है ना। इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन को देखिए, एग्जैक्ट हाफ, ठीक है। और उसके बाद हमें मोर देन हाफ नजर आता है, ठीक है, मोर देन हाफ नजर आता है, यानी दिस मच ऑफ द पोजीशंस, ये आपको मोर देन हाफ नजर आ रहे हैं। एंड देन कम्स द फुल मून, ठीक है, ये है फुल मून। इसे हम क्या बोलेंगे? फुल, पूरा पूरा का पूरा सर्कुलर आपको नजर आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द फुल मून ओवर देयर, ठीक है। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, around the earth once every month, the moon's appearance varies according to how much of its illuminated surface is turned toward the earth, ठीक है। अलग अलग टाइम पर, मतलब फॉर द होल मंथ, ठीक है, जितना टाइम में जो मून है वो अर्थ का यू कैन से रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, उस दौरान जितना जितना सरफेस, अर्थ की तरफ वाला जो सरफेस है, वो जितना जितना लिट होगा, इल्यूमिनेटिंग होगा, उसे सन की लाइट मिल रही होगी, उतना ही हमें नजर आएगा, उसके अलावा हमें नजर नहीं आएगा, राइट। द डिफरेंट व्यूज ऑफ द मून, उसे ही हम क्या कह देते हैं? फेसेस कह देते हैं। जो हमें अलग अलग व्यूज मिल रहे हैं मून के, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून, ऑलराइट। तो देखिए, अभी मैं आपको सारे के सारे फेजेस बताती हूँ। ये देखिए, दिस इज द न्यू मून, यू आर नॉट गोइंग टू सी दिस। तो मतलब ये पार्ट वो पार्ट है जब जितना मून का पार्ट अर्थ को फेस किया हुआ है एंड उस पार्ट पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब आप इसे हम न्यू मून बोलते हैं। अब देखिए वैक्सिंग क्रेसेंट, तो ये जो वैक्सिंग क्रेसेंट है ये वो पार्ट है, मतलब देखो इतना पार्ट ही यू कैन से इल्यूमिनेटिंग पार्ट है जो अर्थ की तरफ है, ठीक है। अर्थ के पोर्शन वाला, अर्थ की तरफ वाला जो पोर्शन है उसमें सिर्फ इतना सा ही पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी दिस मच ऑफ इट। फिर आता है फर्स्ट क्वार्टर, तो ये हाफ मून है। देन कम्स द वैक्सिंग गिबस, मोर देन हाफ, देन यू आर गोइंग टू गेट द फुल मून। देन देखिए वेनिंग गिबस, अब ये छोटा होने जा रहा है तो वी कॉल इट वेनिंग gibbous, right? Last quarter, half of the moon, right? And then the waning crescent and then no moon, right? This process goes on and on and on, ठीक है। On a new moon night, the moon is a dark ball and the new moon is not visible to us, क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइट उस वक्त उस फेस पर नहीं पड़ रही होती जो कि अर्थ की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फुल मून पे क्या हो रहा है, जितना ये देखो, अगर ये पूरा का पूरा फेस अर्थ की तरफ है और उसके ऊपर पूरे के पूरे पे लाइट गिर रही है तो हमें दिखाई देगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि वी कैन सी द होल सर्कुलर मून,
ठीक है, in between a new moon and a full moon, then between the full moon and the next new moon, यहाँ पे अलग अलग शेप्स नजर आ रही है, ठीक है, न्यू मून से फुल मून से वापस न्यू मून, इनके बीच में देयर आर वेरियस ऑफ फेजेस, और इन्हें ही क्या बोला गया है, फेजेस ऑफ द मून, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से ये जो फेसेस हैं ये बनते हैं, ठीक है। नाउ अब तुम्हें असली बात समझ में आएगी, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से एक्चुअली में ये जो फेजेस हैं ये बनते हैं, ठीक है। लेट्स लुक अप टू दिस। तो देखिए आपको दिख रहा है ये बड़ा सा सन नजर आता है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहा है कौन, मून, ठीक है, इसके चारों तरफ मून घूम रहा है। देयर आर पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 पोजीशंस इन दिस फिगर, और 8 पोजीशन जो अर्थ को नजर आएंगे वो कौन सी पोजीशंस हैं, वो ये पोजीशंस हैं, ठीक है। ये तो वो पोजीशंस हैं जहां से उसे सन की रोशनी मिल रही है, ठीक है, एंड ये वो पोजीशंस हैं जो हमें नजर आएंगे, अर्थ पे बैठे लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, फटाफट से देखते हैं। When the moon is on the side of the earth nearest to the sun, see position 1 in the figure, then the side of the moon which is lit by sun is away from the earth. Can you see this one position over here? यहाँ पर देखो ये है गोल मून, ठीक है, ये जो सन की तरफ वाला फेस है उस पे तो पूरी की पूरी रोशनी आएगी सन की, वो इल्यूमिनेटिंग पार्ट होगा, लेकिन जो हाफ पार्ट अर्थ की तरफ है वहां पे बिल्कुल भी सन की लाइट नहीं है। सो इस टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पे अर्थ पे बैठे लोगों को कैसा मून दिखाई देगा, फर्स्ट नो मून, क्योंकि जो पार्ट मून का अर्थ की तरफ है वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, जरा सी भी लाइट नहीं है वहां पे सन की, दैट इज द रीजन वो हमें नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी द फर्स्ट पोजीशन एज द न्यू मून पोजीशन, राइट। पीछे वाले पार्ट पे सारी सन की रेस जा रही है, बट जो मून का पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है वहां पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा रही है, दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू गेट द न्यू मून, ठीक है, एंड द साइड ऑफ मून विच इज टुवर्ड्स द अर्थ इज इन डार्कनेस, ठीक है। इस पोजीशन पे मून जो है वो बिल्कुल 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 डार्कनेस में नजर आएगा। क्या बोलते हैं इस दिन को, अमावस्या, ठीक है, वी कॉल इट न्यू मून एंड ऑल्सो दी अमावस्या, ठीक है। इनफैक्ट वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, इस दिन बिल्कुल भी हमें मून का पता ही नहीं चलता, वेयर इज इट, पूरे टाइम कहाँ है हमें नहीं पता चलता, क्यों, क्योंकि हम उसे देख ही नहीं पा रहे होते, राइट, बिकॉज अंधेरा होता है उसकी तरफ, दैट इज द मेन थिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन 1 to 2। तो देखो जैसे जैसे ये 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक आता है तो जो अर्थ से लोग देख रहे हैं उन्हें ये थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग पार्ट दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल इल्यूमिनेटिंग पार्ट दिखेगा, जरा सा बिल्कुल, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू सी द वैक्सिंग क्रेसेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू सी दिस मच ऑफ दिस, इतना सा ही पार्ट, सिर्फ इतना सा ही पार्ट जो है वो अर्थ से विजिबल होगा। हालांकि आप अभी देख सकते हो कि सन बिल्कुल मून के आधे पूरे पार्ट पे रोशनी दे रहा है, लेकिन अर्थ वालों को क्या दिखाई दे रहा है, इतना सा पार्ट, मतलब इल्यूमिनेटिंग पार्ट हमें उतना सा दिखाई दे रहा है, बाकी का जो पार्ट है वहां सन की रोशनी नहीं पहुंच रही,
ठीक है, जिस पार्ट में सन की रोशनी पड़ रही है और जो धरती वाले देख पा रहे हैं वो इतना सा ही पार्ट है, दिस इज द पोजीशन 2 वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, तो एज द मून मूव्स इन इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 वी सी अ स्मॉल सनलाइट पोर्शन ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रिसेंट मून। ठीक है, एंड वैक्सिंग, व्हाई सो वैक्सिंग, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसे वैक्सिंग बोल देंगे, वैक्सिंग क्रिसेंट बोल देंगे। एज द मून मूव्स फर्दर फ्रॉम पोजीशन 2 to पोजीशन 3 and 4, अब जैसे जैसे ये 3 से 4 पहुंच रहा है तो तुम देख पा रहे हो कि भाई अर्थ, अब देखो इतना सारा पोर्शन देख पा रही है, इतना सारा पोर्शन वो देख पा रही है, किसका, ऐसे मून का सरफेस जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, एंड ऑल्सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। सो यू आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड पोजीशन पे आपको हाफ अंधेरा हाफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट फॉल हो रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू सी द फर्स्ट क्वार्टर मून एंड देन कम्स टू द पोजीशन 4। अब हमें ज्यादातर पार्ट दिखाई दे रहा है, लाइट जो लाइट एंड ब्राइट एंड इल्यूमिनेटिंग है जो सरफेस, उसमें हमें ज्यादातर पार्ट दिखाई दे रहा है। ये ज्यादातर पार्ट जो है एक्चुअली में किसकी वजह से है, वैक्सिंग गिब्बस। अब मोर पार्ट, हाफ से भी ज्यादा पार्ट हमें नजर आ रहा है। सो एट दिस पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन यू आर गोइंग टू गेट वैक्सिंग गिब्बस ओवर देयर। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मोर देन हाफ पार्ट अर्थ को विजिबल होता है, क्योंकि उस पार्ट पे सन की रोशनी तो गिर रही है और वही हमको विजिबल है। रिमेनिंग थोड़ा सा बचा पार्ट जो है वो अंधेरे में है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग फेज, इसको हम इंक्रीजिंग फेज कहते हैं, वैक्सिंग फेज कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर। अब और भी ज्यादा टाइम में, यानी कि आफ्टर 2 weeks फ्रॉम द न्यू मून, द मून रीचेज इन पोजीशन 5 विच इज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अब कितने टाइम बाद, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 2 weeks अब जो मून का पोजीशन है वो 5th पोजीशन पे आ गया है ना। अब आप खुद से देखो, अब आप खुद से देखो कि इस वक्त पूरा का पूरा जो आधा, पूरा का पूरा आधा मून पर जो लाइट गिर रही थी वो पूरा हमें विजिबल है। अर्थ पे बैठे लोग पूरे के पूरे इल्यूमिनेटिंग मून को देख सकते हैं, राइट। जब वो इल्यूमिनेटिंग मून को देख सकते हैं तो मतलब उन्हें कैसा मून दिखाई देगा, पूरा फुल मून आफ्टर 2 months। तो 5th पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे जब मून होगा, यू आर गोइंग टू गेट द सी, यू आर गोइंग टू सी द फुल मून ओवर देयर। ठीक है, पूरा का पूरा मून तुम्हें नजर आएगा। In this position, whole sunlit side of the moon is towards the earth, and we see the moon as a full round disk of bright light. हमें पूरी की पूरी राउंड डिस्क नजर आएगी ब्राइट लाइट की, यानी कि फुल चमकता मून हमारा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। क्या बोलेंगे इसे, पूर्णिमा बोलेंगे हम लोग, हमारी लैंग्वेज में से पूर्णिमा बोलते हैं। दैट इज द फुल मून। ठीक है, चलो, the full moon night और पूर्णिमा is very bright because we have the maximum moonlight on that night। वो काफ़ी ब्राइट होती है क्योंकि जितना भी illuminating मून है वो सब हमें दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हम पर फॉल होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए अब ये 5 से 6 पोजीशन पे आया। ठीक है, तो अब वापस से जो पार्ट है जो विजिबल है अर्थ से, जो विजिबल पार्ट है अब वो काफ़ी कम हो गया, मतलब अब इट इज़ डिक्रीजिंग। यू आर गोइंग टू गेस दिस मच ऑफ दी, यू कैन सी मून ओवर हेयर। तो ये थोड़ा सा पार्ट अब डार्कनेस में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट अब डार्कनेस में चला गया। सो दिस इज द फेज नोन एज द डिक्रीजिंग फेज। अब उसका साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेनिंग गिब्बस। क्या बोलने वाले हैं, वेनिंग गिब्बस बोलने वाले हैं। ठीक है, सो वेनिंग मीन्स इट इज डिक्रीजिंग फेज। ठीक है, नेक्स्ट अब कम्स टू दी, यू कैन से यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इट विल मूव अप टू द 7th पोजीशन। 7th पोजीशन में हाफ हमें दिखाई देगा, आधा डार्कनेस, आधा you can say in the bright light. So you are going to get this much of the shape of the moon, that is the last quarter moon. ठीक है, and then it comes to the 8th position, a very small, हमको काफी स्मॉल मून नजर आएगा। तो अब डिक्रीजिंग फेज था, तो दिस इज वेनिंग क्रिसेंट। कैसा दिखाई देगा, वेनिंग क्रिसेंट दिखाई देगा। सो यू आर गोइंग टू सी ओनली दिस मच ऑफ द ब्राइट मून, सिर्फ इतना सा ही ब्राइट मून दिखाई देगा, बाकी सारा डार्क मून हो जाएगा। ठीक है, एंड 8th पोजीशन के बाद अगेन यू आर गोइंग टू गेट द 1st पोजीशन। 1st पोजीशन में वापस से कोई भी मून आपको नजर नहीं आ रहा, कोई सा भी पार्ट नजर नहीं आ रहा। रीजन इज क्योंकि मून के अपोजिट पे लाइट पड़ रही है, इधर लाइट नहीं पड़ रही है, राइट, दैट इज द रीजन। ठीक है, सो देखिए
And ultimately moon completes the revolution around the earth and reaches again at position 1 over there. ठीक है, that's how. अब देखिए नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, we can have one new moon and one full moon during a month. ठीक है, during a month means that is the time by which you can get the one revolution of moon around the earth. ठीक है, so 1 month में you are going to get one new moon, one full moon. ठीक है, अब देखिए we conclude that we have अमावस्या on the new moon day which changes in 2 weeks time into पूर्णिमा. जो अमावस्या होता है यानी कि नो मून डे होता है वो आफ्टर 2 weeks you are going to get it is in the अमावस्या ना पूर्णिमा, that means a full moon. ठीक है, आफ्टर 2 weeks you are going to get that and जो अगले 2 weeks के अंदर वो पूर्णिमा से वापस से न्यू मून के पोजीशन तक चला जाता है, राइट. सो दिस प्रोसेस इज गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ठीक है, फटाफट से आप इन नोट को नोट कर लीजिए. सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये वापस से होते रहता है. ठीक है, हमें न्यू मून से पूर्णिमा यानी फुल मून से वापस न्यू मून, वी आर गोइंग टू गेट दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स अप अबाउट 1 month. 1 महीना लेती है इस पूरा प्रोसेस. लेट इट बी, ओ माय गॉड. ठीक है, सो पूरा प्रोसेस होने में सिर्फ 1 month जो है लगता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक ऑफ द मोर ऑफ द थिंग्स. ठीक है, ये है हमारी सैटेलाइट एंड दिस इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट उन सैटेलाइट्स को बोला यानी उन ऑब्जेक्ट्स को बोला है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे आर मैन मेड, राइट. दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज द आर्टिफिशियल वन. गॉड, देखो artificial satellite, a man-made spacecraft placed in an orbit around the earth is called an artificial satellite. तो ऐसा man-made satellite aircraft जो कि अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में लाया जाता है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को मैन-मेड सैटेलाइट्स भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज वी ह्यूमंस मेड दैट, राइट. An artificial satellite is placed in orbit around the earth with the help of a launch vehicle called rocket. So basically rocket की help से that is the launch vehicle. ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर से अर्थ के बाहर तक हम सैटेलाइट को लेकर जाते हैं और वो सैटेलाइट फिर क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. ठीक है, एक ऑर्बिट हम उसका जो है मेन ऑर्बिट में हम उसको स्थापित कर देते हैं, एस्टैब्लिश कर देते हैं एंड देन इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो इंडिया की कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं. ठीक है, जैसे लेट इट बी, आई एम टेलिंग यू हियर. ठीक है, इंडिया ने भी काफ़ी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं जिसमें से पहली है आर्यभट्ट. ठीक है, पहली है आर्यभट्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है. कुछ और हैं जैसे इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल एक्सेट्रा, जिसमें से आप इनसेट का फोटो देख सकते हैं, आर्यभट्ट का फोटो देख सकते हैं. सो वी हैव मेड मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टिल नाउ. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं. कैसे एप्लीकेशंस? जैसे फोरकास्टिंग, फ्यूचर की बातें, जैसे कि कल का दिन कैसा रहेगा. ठीक है, व्हाट आर यू कैन से प्रिडिक्शंस अबाउट द वेदर, क्या यहाँ पर इस बार बारिश होगी ज़्यादा या नहीं होगी, उसका प्रिडिक्शंस. साइक्लोन जहाँ बन रहे होते हैं, जब वो स्मॉल स्टेज में होते हैं तो उन्हें पहचान लिया जाता है और आगाह कर दिया जाता है कि इट मे अकर
ठीक है, साइक्लोन आ सकता है तो हम अपने बचे हुए प्रिकॉशंस ले लेते हैं सो दैट वी कैन बी सेफ फ्रॉम द साइक्लोन, द डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, राइट, दैट इज व्हाई इट इज सो हेल्पिंग। फिर देखिए फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, ठीक है, जो आप टेलीविजन देख पाते हैं वो सैटेलाइट्स की वजह से देख पाते हैं। रेडियो सिग्नल्स, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरी फार, तो सैटेलाइट्स बाहर से मतलब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते करते ही वो डेटा को कलेक्ट करती हैं। डेटा कलेक्ट करना मतलब कि भाई किस जगह पे सूखा हो सकता है, ठीक है, किस जगह पे कब सूखा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम में आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, सो दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वी कैन से, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। Alright, now let me tell you some more interesting facts, and the interesting facts are, this is a list of Indian satellites. Oops, कहाँ गई? दिस इज द लिस्ट ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है, जो इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई गई हैं। यू कैन लुक अप टू द डेट ऑल्सो, डेट आप देख सकते हैं कब कब इन्हें लॉन्च किया गया, राइट, एंड दिस इज दी यू कैन से डेटा बेस, ठीक है, और ये आपको डेफिनेटली स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। सो यू कैन लुक अप टू दिस, यू कैन गेट अप टू द हिंट, एंड दिस वुड बी लाइक, this would be the information for a very curious mind. That is the main thing. Now you can also get up to this. मैंने आपके लिए एक और table arrange की है, and this is the table. Now see, there are 8 planets and you are going to get all the 8 planets over there. हर एक planet का distance from the sun, ठीक है, AU, that is the astronomical units, माइल्स किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स। मरकरी का देखो 0.39 यू कैन से यहाँ पर है, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट मिलियंस में, मिलियन माइल्स में भी और किलोमीटर दोनों में ही आपको जो है मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, राइट, यू कैन सी दैट। तो किलोमीटर में अगर हम देखें तो इट वुड बी 57.9 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 57.9 मिलियन किलोमीटर मरकरी दूर है। फिर देखो वीनस 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सन, इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अर्थ 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स 227.9 मिलियन किलोमीटर दूर है। जुपिटर 778.3 किलोमीटर दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है, सॉरी। सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। यूरेनस 2871 मिलियन किलोमीटर दूर है, एंड द फाइनल नेपच्यून 4497.1 मिलियन किलोमीटर दूर है। दैट इज सो बिग डिस्टेंस। नेक्स्ट कम्स टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 1 प्लैनेटरी ईयर, मतलब एक प्लैनेट को, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लैनेट को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सो यू कैन सी मरकरी को 87.96 अर्थ डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में, वीनस को 224.68 अर्थ डेज लगते हैं, ठीक है, अर्थ को 365.26 डेज लगते हैं, इसे हम 1 ईयर बोलते हैं। मार्स में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगते हैं 1 रिवॉल्यूशन करने में, यानी 686.98 अर्थ डेज, ठीक है। जुपिटर पे आप देखिए 12 ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है, यानी कि 11.862 अर्थ ईयर, इसको राउंड ऑफ करके वी गॉट इट 12, ठीक है। सैटर्न पे देखिए 29.5 ईयर्स लगते हैं। यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं। नेपच्यून को 165 ईयर्स लगते हैं फॉर 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। फिर आप देखिए पीरियड ऑफ रोटेशन, राइट, that is the 1 planetary days, right, it should be a day, right, it's not be year. So you can say 58.7 days लगते हैं मरकरी को, 243 days लगते हैं वीनस को, अर्थ को 24 hours, ठीक है, मार्स को 24 hours and a little more 37 minutes extra, ठीक है, जुपिटर को 9 hours 54 minutes, सैटर्न को 10 hours 14 minutes, यूरेनस को 10 hours 49 minutes and Neptune को 15 hours 40 minutes. Next come up to the mass. You can look up to the variety of masses over there, जिसमें से सबसे ज़्यादा मास जो है वो जुपिटर का है, ठीक है, जुपिटर का मास। अब देखो यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप इनकी पावर को देखो, 10 की पावर को देखो, तो देखो सबसे ज़्यादा जो है ना वो किसका है, जुपिटर। जुपिटर का मास सबसे ज़्यादा 27, देन यू कम अप टू 26। लेकिन इसमें अब देखो जब पावर सेम हो गई, 10 की पावर 26, 10 की पावर 26, इन दोनों की पावर सेम हो गई, अब आप नंबर देखो, ठीक है, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई जो सैटर्न है उसका ज़्यादा मास है एज कंपेयर टू दी नेपच्यून, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखो डायमीटर, उनका कितना डायमीटर है पर प्लैनेट। देन कम्स टू दी अपैरेंट एंगुलर साइज एज सीन फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से उनका कितना साइज है, छोटा बड़ा कैसा, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट दैट साइज इन एंगल्स, ठीक है। फिर आप देखो टेम्परेचर, ऑन एन एवरेज उनका कितना टेम्परेचर है, ठीक है। एंड देन यू कम अप टू दी नंबर ऑफ मून्स ऑन द प्लेनेट, ठीक है। तो ये जो आपको जो पूरा टेबल है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अप टू सम फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत अमेजिंग हैं, जो आपको पता होने चाहिए, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट वी शुड बी अवेयर फॉर एवरीथिंग। रिमोट सेंसिंग इज द फर्स्ट थिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर से डेटा कलेक्ट करना, जो कि सैटेलाइट्स करती हैं। देखिए, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग एनी एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग। मतलब दूर से, हम उसको ना तो छू रहे हैं ना कुछ और करें, बट वी आर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, द डेटाज अवे, राइट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट्स करती हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का काम बेसिकली। फिर देखिए टाइड्स, द हेवनली बॉडीज लाइक द सन, अर्थ, मून आर मासिव ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दे एक्सर्ट अ लार्ज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन वन अनदर. The gravitation attraction of moon upon the water of the earth results in the periodic rise and falls of the ocean waters called the tides. Basically, moon काफ़ी heavenly body है जिसका खुद का भी gravitational है. क्यों? क्योंकि उसके पास मास है, right? तो वो खुद भी gravitational pull लगाती है. अर्थ, उसका भी मास है तो वो भी ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तभी तो मून उसके चारों तरफ रोटेट करता है. अब मून की वजह से अर्थ का जो पानी है वहाँ पर टाइड्स होती है, बिकॉज वो उसको पीरियोडिक अट्रैक्ट करती है, राइट. दैट इज वाई वहाँ पर आपको टाइड्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लो एंड हाई टाइड्स हैं, इट इज़ लाइक द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ओवर द वाटर. ठीक है, उसके बेसिस पे वो होती हैं. और देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल सेकेंड, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो गैलेक्सीज हैं ये स्टेशनरी नहीं, रुकी हुई नहीं है, बट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बहुत दूर जा रही हैं. ठीक है, द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज द फास्टर दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, और ये जो गैलेक्सीज हैं ये जितनी ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं उसका मतलब ये बहुत तेज़ी से दूर जा रही हैं. ठीक है, एंड इसी बेसिस पर हम लोगों को ये लगता है कि गैलेक्सीज जो हैं, यानी यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब दिस इज एक्सपेंडिंग, एवरीथिंग एक्सपेंडिंग, सो वी आर गेटिंग मोर स्पेस एंड वी आर गेटिंग मोर मच साइज ऑफ द यूनिवर्स, and that's why we can conclude that bhai it is expanding. all right, so you can note these facts down. फिर हम और कुछ facts भी देखने वाले हैं. राइट, नाउ लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट थिंग. कुछ और बातें. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी को बोला गया भाई, किस तरीके से बताया गया कि भाई यूनिवर्स आया कहाँ से, कैसे आया, देखते हैं. According to this theory, all the matter in the universe was initially concerned into a vast mass about 100 million light years wide. About 15 million light years ago, this super dense mass exploded, hence the name Big Bang. As a result, matter जो है वो सभी डायरेक्शंस में फैल गया, एंड देन गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स ये सब फॉर्म होने लगे. तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सारी की सारी यूनिवर्स, ठीक है, जितना भी अभी यूनिवर्स है, जितना बड़ा है, वो सारा का सारा मैटर जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा डेंस कंसंट्रेटेड एक जगह पर इकट्ठा था. फिर ब्लास्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड द बिग बैंग. जैसे ही ब्लास्ट हुआ, टुकड़े 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 दूर दूर तक फैल गए, एंड देन दे स्टार्टेड टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज उनके पास एनर्जी है तो दे कैन मूव अवे, राइट. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी. ऑल्सो तब गैलेक्सी, स्टार्स और यू कैन से वेरियस टाइप ऑफ प्लैनेट्स ये फॉर्म होने लगे. ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, राइट.
We often use astronomical unit AU for measuring distance and sizes of the celestial object. 1 AU is equal to the mean distance between Earth and the Sun. 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर. दिस इज कॉल्ड 1U एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये एक डिस्टेंस का ही यूनिट है जो हम बड़े डिस्टेंस लेने के लिए मतलब मेजर करते हैं. हमने अभी अभी देखा राइट. मून की जो सरफेस है वो काफ़ी डस्टी एंड बैरन है. बैरन मतलब वहाँ पे प्लांट वगैरह नहीं उग सकते, ठीक है, वो बंजर ज़मीन है. यू कैन से बहुत डस्टी और बंजर ज़मीन है. क्रेटर्स अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड कवर इट्स सरफेस. बहुत सारे क्रेटर्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो उसकी सरफेस को कवर अप करते हैं. इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंज, वैलीज एंड लावा प्लेन्स. वहाँ पर बहुत से माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, इवन वैलीज हैं, लाइक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लावा प्लेन्स हैं. द मून डज नॉट पॉजेस एनी एटमोसफेयर एंड वाटर एंड दस देयर इज़ नो लाइफ. ना तो मून पे वाटर है ना तो एयर है, इसी वजह से वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. प्लांट्स पॉसिबल हो सकते थे अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें होती तो, ठीक है, भले हम ना हो लेकिन प्लांट्स हो सकते थे. फिर हम वहाँ जाते तो हम वहाँ भी पहुँच जाते, राइट. As there is no atmosphere to trap heat, the temperature on the moon is extreme, ranging from 100 degrees Celsius to minus 173 degrees Celsius. इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है because there is no atmosphere over there. So temperature direct मिलता है from the sun. ठीक है, that is why they are not having the you can say little bit of temperature over there. काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है. द नंबर ऑफ मून्स ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद द इम्प्रूवमेंट इन द ऑब्जर्विंग टेक्निक्स. द मैनी न्यू मून्स मे बी डिस्कवर्ड. देखो अभी तक हम लोगों ने सारे मून्स बड़ी बड़ी बॉडीज़ के जो हैं वो नहीं लिए हैं, ठीक है, मीन्स अभी तक हम उनके बारे में पता नहीं कर पाए हैं. तो धीरे 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 विद टाइम नंबर ऑफ मून्स बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है वहाँ बढ़ रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व करवा पा रहे हैं विद द बेटर टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स. तब जाके हमें थोड़े बहुत और पता चल रहा है, अच्छा ये भी मून है, अच्छा ये भी मून है, ऐसे हमें पता चल रहा है. सो वी आर इंक्लूडिंग ऑल दैट डेटा, ठीक है, और इसी वजह से जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर एक प्लैनेट के, ठीक है. तो अभी आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए. Alright, so thank you so much for watching the video. एंड अब हम अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले होंगे. मेक श्योर दैट यू डू दैट. आप आपको नोट्स भी तो प्रॉपर करने हैं, एंड दैट इज द रीजन हाउ यू कैन डू इट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.